So today we are going to start our first chapter, electrostatic. Means in electrostatic chapter 1, electric charges and field. So we are going to start this first chapter, which comes under electrostatic. First of all, we need to study or we need to understand what is electrostatics. Electrostatic का मतलब क्या है, meaning क्या है? So electrostatic has been made up of two words, electro and statics. Electro बोले तो electrons related to electrons और static का मतलब at rest. इसका मतलब electrons at rest. Electrons होते क्या हैं basically? Charges. So charges at rest. So that branch of science in which the phenomenon would be studied which are related when charges will be at rest. So all those phenomena in which charges will be at rest would be studied in the branch of physics is called electrostatic. तो ये मीनिंग सबको क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है. वन बाय वन अब यहाँ पर वर्ड आया चार्जेस. तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है चार्ज के बारे में, लेकिन पहले आज समझते हैं कि चार्ज होते क्या है, क्योंकि आपने जो पढ़ा हुआ है वो ये पढ़ा हुआ है कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स. और मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज चार्ज. आपका आंसर निकलेगा चार्जेस ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स. मैं पूछ रहा हूँ चार्ज क्या होते हैं, व्हाट आर चार्जेस और व्हाट इज चार्ज. बोलिए. Moving particle. सो व्हाट इज चार्ज. Charge is that fundamental or intrinsic property of any matter due to which either it attracts or repels the another objects. That is, in short, which creates electric forces between any two matters. तो चार्ज क्या हो जाएगी बेसिकली, किसी भी मैटर की, चाहे वो मैं हूं, आप हो, टेबल हो, चेयर हो, XYZ, दुनिया में कोई सी भी चीज मैटर. व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच हैव सर्टेन मास एंड ऑक्यूपाइज सर्टेन वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर. जो कुछ आप देख सकते हो वो तो 100% मैटर है ही सही, लेकिन जो कुछ आप नहीं देख सको वो भी मैटर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एयर. तो एयर का एक सर्टेन मास हो सकता है पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर और उसका एक सर्टेन वॉल्यूम हो सकता है. सो एनीथिंग व्हिच possesses certain mass and certain volume is called matter. And every matter has a fundamental property of charge. What kind of fundamental property? That it can either attract or repel the another object. Either it can attract or repel the another object. So charge is that fundamental or intrinsic property of each and every material, each and every particle, each and every matter due to which either it will be attracting another body or repelling another body. Based on this, since either it can attract and either it can repel, based on this, based on attractive and repelling nature, we can classify charges into two categories. What are they? Like charges and
unlike charges. Unlike charges. Please be focused. Still, I didn't mention positive, negative. I just mentioned like charges and unlike charges. So what are like charges? All those objects or all those materials which will be repelling each other would have set to possess the similar kind of charges. For example, let's suppose we are having a lot of objects. Object A, B, C, D, E, F, G, H, so many. Let's suppose if one by one I took object A and I am taking this object A near to the every another object like B, C, D, E, F, G. Then I found that once I have taken it at D, once I have taken it F, once I have taken it at G, then this was repelling to each other. They were repelling. They were repelling. Similarly, besides this, we also got to know that if these are repelling to each other, then any combination of these were also repelling. For example, D and F. If D is repelling to A and F is repelling to A, or A is repelling to D or A is repelling to F, then DF was also repelled. G and F also repelled. So we should say all these materials which are repelling to each other, or in short, for better understanding, you can say if A and D are repelling to each other, then we will say they are possessing or they are having like charges, similar charges. I don't know what kind of it, positive, negative, I didn't mention here, but just I'm saying that they should possess the similar kind of charges. That is the property of matter. Whenever like charges will be taken closer to each other, then they always show the repulsion. Or I can say whenever two objects kept near to each other, and if they were showing the repulsion property, then we gave them name like charges. So what is the category of like charges? Like charges are those charges which possess the similar kind of nature, similar kind of properties. So similar kind of nature, if two or more than two objects would be having, we'll be saying they are possessing the similar kind of charges, same type of charges, and call like charges. Similarly, unlike charges, for example, if I'll take object A to C and we got to know that they were attracting, then we have given them name that object A and C was possessing unlike charges. Don't know which one is positive, which one is negative, but it is 100% sure that both are having opposite nature. Whether it can be positive, it can be negative, or it can be negative, it can be positive. Right. Similarly, these A and D can be positive, or negative, which we are going to discuss further. So what kind of, which category first we'll get to know that based on their attracting and repelling property, we have given or we have classified the charges into two categories, like charges and unlike charges. Got it? चलिए, तो like charges हमेशा क्या करेंगे? Repel करेंगे. Unlike charges हमेशा क्या करेंगे? Attract करेंगे. Which is the rule of the universe. यूनिवर्स में किसी भी चीज को आप देख लें, कहीं पे भी आप देख लें, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, XYZ, किसी भी चीज, always opposite charges will attract and similar charges will repel. So इस बेस पर हमने क्लासिफाई किया है चार्जेस को. अच्छा, अब क्योंकि हमने बात करी कि या तो चार्ज सिमिलर हो सकता है या चार्ज यानी कि लाइक चार्जेस हो सकते हैं, अनलाइक चार्जेस हो सकते हैं, तो लाइक के अंदर भी ये देखने को मिल रहा था कि अगर ए ऑब्जेक्ट डी को कर रहा था रिपेल,
ए ऑब्जेक्ट सी को कर रहा था अट्रैक्ट, ठीक है। आप बता सकते हैं क्या बी और सी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट? अट्रैक्ट। 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 वेरी गुड। अब मैंने बोला ए और डी कर रहे थे रिपेल, बी और सी भी एक दूसरे को कर रहे हैं रिपेल। बता सकते हो क्या कि ए और बी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट। मैंने लिख दिया ई और एफ एक दूसरे को कर रहे हैं रिपेल, एफ एंड जी एक दूसरे को कर रहे हैं अट्रैक्ट। एफ और जी नहीं, जी और एच एंड जी आर अट्रैक्टिंग। बताइए ए और ई एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। हाँ भाई सभी लोग। तो अब जब तक हम बता नहीं सकते कि ए और ई अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, इस वजह से नीड हुई कि हम पहले सिमिलर चार्जेस या लाइक चार्जेस को भी डिफाइन करें। हमने बोला सिमिलर चार्जेस तो दो कैटेगरीज बनाई गई। एक बनाई गई कि मान लिया ए को मैं बोल दूं थोड़ी देर के लिए, मुझे नहीं पता कि कैसा है, तो बस दो तरीके से रिपेल कर सकते हैं। अगर इसको मैं पॉजिटिव बोल दूं तो डी भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने बोल दिया ए भी पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव है, तो रिपेल कर रहे होंगे। लेकिन क्या पता, ये तो मैंने माना है, अगर कोई कह दे कि नहीं मैं तो डी, अगर ए और डी को माइनस माइनस मान लूं तो भी तो सिमिलर नेचर ही कहलाएगा, तो बिल्कुल सही बात है। तो अभी नहीं पता, तो हमने बोल दिया कि या तो ए और डी दोनों पॉजिटिव नेचर के होंगे या दोनों नेगेटिव नेचर के होंगे। ये कंफर्म है कि अगर ए पॉजिटिव है तो डी को भी कंपलसरी पॉजिटिव होना पड़ेगा अगर रिपेल कर रहे हैं तो, या फिर ए को अगर नेगेटिव मान लूं तो डी को भी नेगेटिव मानना पड़ेगा, ये कंपलसरी। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए केस 1 ले लेते हैं कि ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव, और अगर मैं यहाँ बोल दूं कि ये रिपेल करते हैं तो मैंने भी इनको भी मान लिया ई पॉजिटिव और एफ पॉजिटिव, तो रिपेल कर रहे होंगे। अब देख करके बताओ ए और ई आपस में क्या करते? रिपेल। रिपेल। लेकिन अगर मैं बोल देता कि नहीं ये रिपेल तो तब भी तो कर सकते हैं कि अगर ई और एफ माइनस होता, यस और नो? यस सर। क्या इस बेस पर अब ए और ई रिपेल कर रहे होते? नो सर, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करने। बस यही प्रॉपर्टी, यही चीज देखने को मिली कि कुछ सिचुएशन में जो चीज इसको रिपेल कर रही थी, यानी कि एक बॉल ली मैंने, दूसरी बॉल ली, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे ए और डी, और हमने ये देखा कि ये दो बॉल्स हैं, ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रही है। तो आप अभी कंफर्म नहीं कह सकते कि अगर ए को मैं इस बॉल ई के पास लेकर के जाऊं तो ये अट्रैक्ट करने वाली है कि रिपेल करने वाली है। तो ऐसी एक और बॉल बना देता हूं, तो हुआ क्या, ये बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ बॉल्स है, तो ये ई एफ जी एच ये सभी रिपेल कर रही है। तो ए को ई के पास ले गया तो पता चला ये तो अट्रैक्ट कर रही थी, और ए को ई जी के पास ले गया तो पता चला कि ये रिपेल कर रही थी। इसका मतलब हमने देखा कि ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, लेकिन एक सिचुएशन में ये अट्रैक्ट कर रही है और एक सिचुएशन में रिपेल कर रही है। इसका मतलब हमको चार्जेस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और इसी वजह से हमने बोल दिया कि चार्जेस की नेचर वाइज चार्जेस को टू टाइप से मान लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हाँ भाई, कितनों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, पॉजिटिव नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पता होने से पहले ही ये जब ऑब्जर्वेशन हुए कि कोई दो चीजें अट्रैक्ट कर रही थी, जैसे अभी एग्जांपल दे दे कि वही दो ग्लास रॉड को सिल्क से रब करके उन दोनों को हैंग कर दे और उन दोनों को पास ले जाए तो वो दोनों रिपेल कर रही थी। इसी तरह से जैसे प्लास्टिक एयर छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा है, या दो प्लास्टिक की बॉल ली उनको वुल से रब किया, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही है, कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन सबसे क्या पता चला
कि पहली चीज चार्जेस के दो नेचर हो सकते हैं, या तो अट्रैक्टिव नेचर या रिपल्सिव नेचर। अट्रैक्टिव देखा गया बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कैटेगरी वाइज करते गए। फिजिक्स इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट, इनफैक्ट नॉट फिजिक्स, science is all about the experiment in which we perform the series of experiment, record the observation, finally take the conclusions, their results, and we conclude if whether they are following the certain rules and regulations. If they will be following those rules and regulation, it will become law. तो बोला गया कि हाँ कुछ मटेरियल्स ऐसे थे जो हमेशा अट्रैक्ट कर रहे थे, हमेशा मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, और वही मैटर दूसरों के साथ रिपेल कर रहे थे। तो ये इस चीज की आवश्यकता महसूस हुई कि हाँ भाई चार्ज को बोला जाना चाहिए कुछ, यानी कि चार्ज वर्ड भी ऐसा है कि यार कुछ मैटर ऐसे हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वही मैटर कभी रिपेल कर देते हैं। तो इस प्रॉपर्टी जिसके थ्रू कोई भी मैटर, हर एक मैटर के पास ये एबिलिटी है कि वो किसी सब्सटेंस को या तो अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके, उसको बोल दिया चार्ज। फिर जब सीरीज ऑफ ऑपरेशंस और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म की तो उससे पता चला कि कुछ जो अट्रैक्ट कर रहे थे और कुछ जो रिपेल कर रहे थे। तो बेस्ड ऑन दिस, और सिमिलर दो ग्लास रॉड को ले गए तो वो रिपेल कर रहे, तो बेस्ड ऑन दिस हमने कंक्लूजन दिया कि अगर लाइक चार्जेस होंगे, सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस होंगे, यानी कि सिमिलर टाइप ऑफ मैटर जिनके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर हुई होगी जिसको हम चार्ज बोल रहे हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेगी। सिमिलर जब भी होंगे, लाइक जब भी होंगे, और अनलाइक एक दूसरे को, यानी कि सिल्क को ही अगर मैं मान लीजिए उसके पास लेकर चले जाऊं ग्लास के पास, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हम बोलते हैं क्या कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक एंड अनलाइक। अब लाइक में भी दो अलग अलग कैटेगरी बनी जो अभी हमने एग्जांपल देखा। तो इस वजह से फिर दूसरी फर्दर हमको ये जरूरत महसूस हुई कि चार्ज को नेचर के हिसाब से क्या बोल सकते हैं कि या तो पॉजिटिव चार्जेस बोलते हैं या नेगेटिव चार्जेस बोलते हैं ना। अब पॉजिटिव चार्जेस हुए क्या, नेगेटिव चार्जेस हुए क्या, इससे फर्क नहीं पड़ा। एक बार एक कन्वेंशन दे दी, अगर मैंने बोल दिया कि भाई मैं तो इसको पॉजिटिव बोलूंगा, ये जो ब्लैक कलर का मार्कर है मैं इसको पॉजिटिव बोलूंगा, और ये जो दूसरे कलर का मार्कर है, मैं दो ही मार्कर यूज करता हूँ ब्लैक एंड ब्लू, मैं इसको पॉजिटिव बोलूंगा, तो ये इसका नेगेटिव हो गया, खत्म कहानी। ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को ही नेगेटिव क्यों बोला और प्रोटॉन को ही पॉजिटिव क्यों बोला। हाँ उस टाइम पे बोल दिया गया होता कि यार प्रोटॉन को तो हम साहब नेगेटिव बोलेंगे और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव बोलेंगे। तो आज आप हम ये पढ़ रहे होते कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं, प्रोटॉन नेगेटिव होते हैं। तो उन्होंने कि ठीक है, जिस टाइम तक सिर्फ क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, फिर उसी के थ्रू हमने करंट फ्लो को माना। बाद में पता चला कि यार ये तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो थी। करंट फ्लो पहले बता दिया था, तो करंट की जो डायरेक्शन बताई थी वो पता चला कि यार ये तो बेसिक फ्लो तो इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, करंट खुद कुछ नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और ये तो देखा गया कि यार इलेक्ट्रॉन तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बोल दिया कि यार भाड़ में जाने, तो हमने बोल दिया अगर करंट को हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसके पाथ को रिवर्स मान लेते, तो इलेक्ट्रॉन को बोल दिया नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गए तो फिर प्रोटॉन अपने आप पॉजिटिव हो गया, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव। तो ऐसे ऐसे कुछ हो जाती हैं चीजें। नामकरण संस्कार हमें करना था, कर दिया। हमें का मतलब जो हमारे अगले बड़े चले गए करके। तो पी फॉर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ई के ऊपर एक माइनस साइन लगा देता हूँ, तो ये मेरी जनरल रिप्रेजेंटेशन रहती है, ई माइनस पी प्लस। ठीक है, तो इतना मेरे हिसाब से आपको अब समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों क्लासिफाई किया गया और लाइक अनलाइक क्यों क्लासिफाई किया, लाइक अनलाइक। आगे बढ़ते हैं सर, पॉजिटिव के और एग्जांपल्स। हाँ भाई, कौन बताएगा आप में से पॉजिटिव नेगेटिव के एग्जांपल? तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, एक तो प्रोटॉन, जितने भी पॉजिटिव आयंस है वो भी किसके अंदर कैटेगराइज किए जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस के अंदर, जैसे Al प्लस Mg प्लस Na प्लस। ठीक इसी तरह से नेगेटिव के अंदर क्या क्या हमें रखना है, इलेक्ट्रॉन्स और सभी के सभी नेगेटिव आयंस, क्लोरीन माइनस, O माइनस, 2N माइनस 3 एटसेट्रा, जितने भी ऑल नेगेटिव आयंस हैं आप उनको रखोगे किसमें, नेगेटिव चार्जेस के अंदर। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइक अनलाइक दोनों की तरह से। ठीक है, अच्छा जल्दी से चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चार्ज की कुछ चीजें, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होती है क्या, कूलम।
रिप्रेजेंटेशन कैपिटल सी। चार्ज जो है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अनदर यूनिट्स क्या हो सकती हैं इसकी? अनदर यूनिट्स होती हैं इसकी ESU एंड EMU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक, तो 1 कूलम होता है कितने के बराबर? 3 × 10⁹ ESU, और 1 EMU खुद किसके बराबर होता है? 10 कूलम के। बोले तो 3 × 10⁹ ESU। क्लियरली सबसे बड़ा कौन होगा? EMU, क्योंकि कूलम ESU से बड़ा है। 1 कूलम में इतने ESU हैं और 1 EMU में इतने कूलम हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि EMU इज द बिगेस्ट यूनिट फॉर द चार्ज। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, ऐसा यूनिट कूलम हो गई, और अनदर यूनिट ESU EMU हो गई। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स अबाउट द चार्ज। और फिर ये बता ही दिए कि चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, 2 टाइप्स के हो सकते हैं। और अगर लाइक चार्जेस हैं तो लाइक के अंदर या तो पॉजिटिव 2 चार्जेस होंगे या नेगेटिव 2 चार्जेस होंगे। तो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और नेगेटिव भी रिपेल करेंगे, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड इसी तरह से अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस क्या हो सकते हैं? एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट। इस वाली लाइन को बोला जाता है बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक? Like charges always repel each other and unlike charges always attract each other. This statement is called the fundamental law of electrostatic, जो आपको फिर बाद में कहीं पे भी एकदम से नहीं दिखेगा, जिसको जनरली स्किप कर दिया जाता है। तो ये चीज यहाँ तक हो चुकी है। यहाँ तक कितनों को अच्छे से समझ में आ चुका है?